Hello and a very good evening everyone. Hi Ananya, how are you? Good evening. Hi Atharv, Avni, Chelshi, Dev, Devansh, Dhaval, good evening. Dhruv, Disney, Harshit, Karthik, Navya, Nisarg, Om, Prakriti, Rainy, Rishant, Ronit, Shanaz, Shaurya, Hi Soumya. कैसे हैं आप लोग? Hi Udbhav, Devansh, Advait. I'm good Shanaz, how are you? Good Anubhav, what about you? Hi Archie. Good evening Nisarg, Ananya. Hi Dolly. Just completed the English nouns RSM full part. That's great Anubhav. How was the experience? Okay Dhaval. Too much exam pressure? Abhi see? No problem. My voice is low. Is it better now everyone? Is it better now? Good evening here. Okay. So once again, welcome back everyone. My name is Abhishek Soni and this is going to be a very interesting session. Now, we are going to talk about narrations today, also called direct and indirect speech. Yes, Anubhav. Okay. So shall we start the discussion now? Can I get a yes from everyone? Great then. So I have as usual prepared notes for the session, so you don't need to note anything down as of now. Just one request, keep yourself focused on the lecture and just think about what I'm talking about in the session. Do not go beyond it, otherwise you may miss some important points. If you have some doubts, you can raise your hands. Because of the number of texts, I probably won't be able to see all the texts. So better is you raise your hand, then you can talk to me. Okay. Now let's start the session. Krishnam, the notes will be provided. You don't need to note anything down as of now. You can download the notes and that will be sufficient. Okay, so 1 second. Right. So let's talk about direct and indirect speech. What exactly do we understand by these two terms and how do we prepare? 1 second. Okay. So direct and indirect speech. Everyone focus now. होता क्या है, if you have let's say 3 people talking to one another. Divyanshu has raised his hand. Divyanshu, do you have a question? Good evening Naitik. Divyanshu, okay, no, fine. So if let's say there are 3 persons talking to one another, there is A, there is B and then there is C. So A कुछ बोल रहा है, let's say A ने कुछ बोला B को, अब B को वही बात C को बतानी है. A ने बोला है B को, लेकिन B को वही बात C को बतानी है. तो A ने जब B को बोला, that was direct speech. B ने जब C को बोला तो that was indirect speech. बस इतना ही difference है दोनों में. Right? So when you quote the exact words spoken by someone within quotation marks, so A ने जो B को बोला है that is direct because वो quotation marks में है. I said I'm going to the store. So मैंने कहा I'm going to the store, ये मैं B को बोल रहा हूँ. This is exactly what the words of the speaker are. But what if you convey what someone else has said without quoting his or her exact words? तब वो बन जाएगा indirect और reported speech का example. तो direct speech में आप जो speaker है उसने जो बोला है वही का वही सामने वाले को बोल दोगे, वो हो जाएगा direct speech. Indirect speech में जो speaker ने आपको बोला है आप उसमें कुछ subtraction addition करके कुछ manipulation करके दूसरे person को बोल रहे हो, वो बच जाएगा indirect और reported speech. ओके फाइन. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, आई सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर. ये आई सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर में हमने क्या किया है, ये यही पर्सन है जो ये पूरी बातें कर रहा है. राइट? तो व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच, तब यू हैव अ कॉमा हियर
एंड ये दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका सेम पार्ट आता है. दिस इज द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द स्पीकर, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. अब इसमें दो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है. पहला टर्मिनोलॉजी है ये वाला जो पार्ट होता है ये, दिस इज व्हाट वी कॉल रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज व्हाट वी कॉल रिपोर्टिंग वर्ब. ये जो सेड लिखा हुआ है यहां पर, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. तो ये दो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है. पहला है रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आता है, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है. क्या इसमें किसी को कोई डाउट्स है? Avni, we have just started. As of now we are talking about direct and indirect speech. रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, तो जो कॉमा के बाहर आ रहा है, जो भी वर्ब यहां पर आएगा, आई सेड, ही सेड, शी सेड, जो भी है वो बोलते हैं, उसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब. क्योंकि ये वर्ब है, सेड एक वर्ब होता है, तो उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं पूरा स्टेटमेंट, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. बस इतना ही था इसमें. ठीक है, तो अगर मैंने क्या कहा, अगर मैंने इस इन्वर्टेड कॉमा को और ये वाले कॉमा को हटा दिया और मैंने कुछ चेंजेस कर दिए स्ट्रक्चर में, तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. जैसे यहां पर हुआ है, सेम बात को मैंने अपने एडिशंस के साथ बोला. आई सेड दैट आई वाज गोइंग टू द स्टोर. तो ये चेंजेस यहां पर कुछ हो गए. अब कौन से चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, ये सब कुछ मैं कुछ देर में क्लियर करूंगा. नो अनुराग, यू डिड नॉट मिस एनीथिंग, डोंट वरी. Suraj has raised his hand. Suraj, do you have any questions? Suraj, you can unmute yourself. हेलो. Yes. हेलो सर, गुड इवनिंग. Good evening, Suraj. बोलो. सर वो अभी मैंने एक्चुअली अभी क्लास ज्वाइन की थी, थोड़ा लेट हो गया था. सर आप एक छोटा सा रिकैप दे सकते हो? ओके, सो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में. डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है व्हेन यू कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन. जैसे मेरे पास में कोई पर्सन आया, उसने मुझे कुछ बोला, मैंने वही की वही बात बिना कुछ एडिशन, बिना कुछ सब्ट्रैक्शन के सेम बात दूसरे पर्सन को बता दी. दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच के केस में व्हेन अ पर्सन कम्स टू यू एंड सेज समथिंग टू यू, देन द सेम थिंग आप किसी और पर्सन को कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ बताते हो. दैट इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. बस दोनों में इतना ही डिफरेंस है. ठीक है, ओके. अब देर आर सर्टेन रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो जब हमको चेंजेस करना होता है. ओके आर्यन, आई विल, नो प्रॉब्लम. आई होप एवरीवन अग्रीज कि सबको ये टॉपिक 9, 10, 11 से आता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो आई विल इंक्रीज माई स्पीड नाउ. नाउ देर आर सर्टेन रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो. फर्स्ट होता है, हमको कुछ चेंजेस करना होता है व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. द फर्स्ट काइंड ऑफ चेंजेस आर व्हाट वी कॉल प्रोनाउन चेंजेस. तो हमको जो भी प्रोनाउंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में होता है, उसको चेंज करना होता है. जो भी रिपोर्टेड स्पीच, बाय द वे दीज आर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट्स. ओके, अथर्व विल सी इफ द टाइम परमिट्स, विल डू क्वेश्चंस एज वेल. फिर दूसरे टाइप के चेंजेस होते हैं टेंस में चेंजेस. वेन एवर यू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस होते हैं. ये भी रिपोर्टेड वर्ब में होंगे, बाय द वे. सॉरी, रिपोर्टेड वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे. These tense changes will take place in reported speech. These pronoun changes will take place in reported speech. जो inverted comma के अंदर वाला पार्ट था. ओके, देन देर आर सम अदर चेंजेस. ये भी अदर चेंजेस आपके रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे. तो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ चेंजेस जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं. अब उद्भव बोल रहा है प्लीज बी अ बिट स्लो. अब आर्यन एंड उद्भव प्लीज डिसाइड व्हाट टू डू. Aryan says please go a bit fast sir, and Udbhav says go a bit slow. What do I need to do? Coin toss. Let me take out a coin now. Okay, see, understand, not everyone is as intelligent as someone else, or not everyone is as dull or as slow as other person. तो आपको ये समझना होगा कि there are many students और सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है. ठीक है. Okay, Harsh. Hi, Divyansh.
तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ चेंजेस नाउ. द फर्स्ट काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड प्रोनाउन चेंजेस. मतलब ये हुआ कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउंस होंगे उन प्रोनाउंस को आपको स्पीकर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना होगा. Whoever is the speaker, your pronoun has to match the speaker. Okay? Udbhav, you don't need to make notes. I will be uploading these same notes by tomorrow, so you can download it. ठीक है? तो टू मैच द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर हमको प्रोनाउंस में चेंजेस करने होते हैं. तो प्रोनाउन भी बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं. व्हाट इफ इट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हियर? फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? सो फर्स्ट पर्सन में आई, एम, मी, माई, वी, अस, आर, ये सारे होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. राइट? तो ये जो चेंजेस होते हैं ये स्पीकर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग होते हैं. हमेशा रिमेंबर ये रखना दैट वी नीड टू चेंज द प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर. ओके? Take a look at this example. She said, I am coming. Now in this statement, ये I कौन है? Can you tell me? Can you tell me she ही I है यहाँ पर? ये she I है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है. बोलो. तो अब जो मुझे I जो लिखा हुआ है, क्या ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है? क्या ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है? दिस इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. और ये कहां पर लिखा है? रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टिंग वर्ब में? कहां लिखा है? स्पीच या वर्ब? कृष्णन, दैट इज स्पीच. आई कहां पर लिखा है? स्पीच में. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच. तब इसको स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है. सो हाउ डू वी चेंज इट? ये आई क्या बन जाएगा अब? दिस आई विल बिकम शी जब मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि उसने बोला है, मैंने नहीं बोला है, उसने बोला है. एंड दैट पर्सन इज शी. तो शी सेड दैट शी वाज कमिंग. तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये वाला जो वर्ब है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये पास्ट होता है तब हम कुछ टेंस में चेंजेस करते हैं. whenever this verb is in the past form, there are certain changes in the tense of the reported speech. तो ये अभी के लिए टेंस में जो चेंजेस हुए उस पर आपको फोकस नहीं करना है. अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस के चेंजेस पे फोकस करना है. तो ये आई विल बिकम शी बिकॉज आवर स्पीकर इज शी. और इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं, ये वाले कॉमा को भी हम हटा देते हैं और यहां पर ऐड कर देते हैं दैट को या फिर कभी कभी टू को. ठीक है? तो वैसे यहां पर क्या हुआ? शी सेड दैट शी वाज कमिंग. अब टेंस चेंज क्यों हुआ, कहां चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ? नो नीड टू वरी एज ऑफ नाउ. सारी चीजें डिस्कस होगी. एज ऑफ नाउ प्रोनाउन चेंजेस ओनली. सेकंड एग्जांपल में क्या लिखा है? दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. ये वी कौन है? हु आर दीज वी? हर्षित, जब हम वॉइस को डिस्कस करेंगे आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड स्पीच एज वेल. अभी क्योंकि वॉइस नहीं आया है तो वो बात क्लियर नहीं हो पाएगी. ये वी कौन है? दे है. अग्री और नॉट? हम नहीं है, दे है. उन्होंने बोला है ना. सी, दे, हम नहीं है. सो दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. तो ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. अग्री? तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर चेंज हो जाएगा. स्पीकर कौन है? दे है. तो ये क्या बन जाएगा? वी बिकम्स दे. सो दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क. वी बिकम्स दे बिकॉज स्पीकर कौन था? दे था. ओके? क्या कुछ क्लियर हुआ? आपको स्पीकर पर ध्यान देना है. जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? देखो, सेड मतलब जो बोल रहा है. कौन बोल रहा है? दे बोल रहा है. तो दे, ये वी क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपकी ऐसे चेंजेस होने वाले हैं. अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर आया तो क्या करने वाला है? सेकंड में क्या आते हैं? यू या योर. ये आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन के एग्जांपल होते हैं. फॉर एग्जांपल, ही सेड यू कैन डू इट. अब मुझे एक बात बताओ, ये ही और यू, ये कौन कौन है? देखो, बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखना है. ये है ए, ये है बी और ये है सी. Everyone has to focus on the board. No need to think about anything. Yes, Asta, there will be some tense changes. I will explain. अभी के लिए tense changes को नहीं देखना है. Now let's say A ने B को बोला. A ने किसको बोला है? B को. You can do it. ये you कौन? A या B या C? B है. डू यू अग्री? अब B क्या कर रहा है? B बता रहा है कि मेरी A से बात हुई थी, उसने मुझे ये कहा है. पर A ने हार्डवर्क करने, सॉरी हाँ, A ने किसको बोला है कि यू कैन डू इट?
बी कैन डू इट। तो बी अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा जब वो अपनी सेम बात सी को बताएगा? अपने लिए, बी अपने लिए, खुद के लिए आई यूज करेगा, बिकॉज बी खुद आई है ना। तो अब बी क्या कर रहा है? ही इज सेइंग द सेम थिंग टू सी। बट ए ने जो बोला था वो बी के लिए बोला था, तो बी ऐसा नहीं बोले कि तुम करो, नहीं, मुझे ही करने का बोला है उसने। तो ही सेड दैट आई कुड डू इट। अब यू कैन और कुड अभी नहीं देखना है, ये यू बिकम्स आई। किसको बोला है उसकी इंपॉर्टेंस यहां पर होती है। जानवी सेम थिंग, अभी के लिए प्रोनाउन चेंजेस के अलावा यू डोंट नीड टू फोकस ऑन एनी अदर चेंज, जस्ट प्रोनाउन चेंजेस। बाकी की सारी चीजें डिस्कस होगी। ओके अनुभव, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ए सेज टू बी, या ए ने बी को बोला कि यू कैन डू इट। ओके अनुभव, मैंने तुम्हें बोला यू कैन डू इट। तुमसे आर्यन ने पूछा, अनुभव सर ने तुझे क्या बोला? तो तुम क्या बोलोगे? तब तुम बोलोगे आर्यन यू कैन डू इट। क्या आर्यन के लिए बोला था सर ने, या अनुभव के लिए बोला था? हाँ, तो अनुभव क्या बोलेगा? सर ने मुझे बोला आई कैन डू इट। सोचो, तो आई क्या है? अनुभव के लिए यूज हो रहा है, जिसको उसने बोला है। क्या अभी कुछ क्लियर हुआ? सी जो स्टेटमेंट बता रहा है वो सी किसी को नहीं बता रहा है, सी सुन रहा है स्टेटमेंट, वो बता नहीं रहा है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग नव्या, डोंट नीड टू वरी एज ऑफ नाउ। अभी अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, राइट? ठीक है, अभी कुछ क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देखते। शी सेड यू शुड ट्राई दिस। उसने किसको बोला है? उसने किसको बोला है? मुझे बोला है। तो जब मैं यही बात किसी और को बताऊंगा तो अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा ना, कि किसी और के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा? बोलो, अपने पर्सपेक्टिव से। सर बट हाउ डू वी नो दैट, वन सेकेंड, ए सेड टू बी, मे बी ए ने ये किसी और से कहा हो और एंड उसे बी ने उस सेंटेंस को सुन लिया हो। कृष्णम, दैट इज इलॉजिकल। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये यू कौन है। यू इज ऑलवेज द लिसनर, एंड द लिसनर, ये यू लिसनर है, एंड देन द लिसनर विल से द सेम थिंग टू डू, सेम थिंग टू समवन एल्स। बट द लिसनर जो है वो बात को सुन रहा है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को बताएगा ना, हाँ या ना? ओके, शी सेड यू शुड ट्राई दिस। उसने मुझे बोला है यू शुड ट्राई दिस, तो मैं क्या बोलूंगा? शी सेड दैट आई शुड ट्राई दिस। यू बिकम्स आई। क्यों? बिकॉज उसने मुझे बोला था। यू कौन है? मैं हूं। अभी क्लियर हुआ? बोलिए भाई। ओके, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अगर आते हैं तब आप क्या करेंगे? ये सारे प्रोनाउंस कहां पर आ रहे हैं बाय द वे? दे आर पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, नॉट रिपोर्टिंग वर्ब। ओके आर्यन, आई विल। आई थिंक मैंने अभी वही एग्जांपल दिए थे दो। नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में क्या क्या वर्ड्स आते हैं? वी हैव ही, वन सेकेंड, वी हैव ही, शी, दे, इट, हिम, हर, हिज, इट्स, देम, देयर। ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं, दे आर व्हाट वी कॉल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. So in case of third person pronouns, what happens is they remain the same. How exactly? She said he is my brother. Now look at the board everyone. तीन persons हैं, A, B और C. तो A ने, सुनो, A ने B को बोला that C is her brother. सुनो ध्यान से, A ने B को बोला है कौन उसका भाई है? C उसका, ये है ब्रदर. बट बोला किसको है? बोला किसको है? बी को. क्या कुछ समझ में आया? हाँ, तो अब जब बी इसी बात को रिपीट करेगा तो क्या वो अपने लिए रिपीट करेगा कि सी के लिए रिपीट करेगा? बोलो. सी के लिए ना. तो सी कौन है भाई मेरे लिए? सी तो ही है ना, दूसरा पर्सन है ही और शी. तो शी सेड दैट ही इज हर ब्रदर. ये ही रहेगा. कुछ समझ में आया? क्योंकि बी के लिए सी कौन है? ही है. हाँ या ना? यू नहीं है. बी सी को नहीं बता रहा है.
सुनो ध्यान से, बी सी को नहीं बता रहा है, बी किसी और को बता रहा है। बी किसको बता रहा है? डी को बता रहा है कि सी जो है ना, ये सी, हाँ वही सी, वो ए का भाई है। तो कौन है वो? थर्ड पर्सन है। कुछ क्लियर हुआ? एनी डाउट्स नाउ? एनी डाउट्स एनीवन? दिव्यांशु, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस, बी अपने पर्सपेक्टिव से ही बताएगा, बट बी के पर्सपेक्टिव से भी सी एक दूसरा पर्सन ही तो है। हाँ दिव्यांशु, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। बट आई एम नॉट एबल टू हियर हेलो, यू। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। सर अगर ये बात बी अगर सी को बोले तो क्या बोलेगा? बी अगर सी को बोले तो वो ये बोलेगा, वन सेकेंड, हाँ, बी अगर सी को बोले तो क्या बोलेगा? शी सेड यू आर हिज ब्रदर, और हर ब्रदर, सॉरी, यू आर हर ब्रदर। तो यहां पर पर्सपेक्टिव मैटर करेगा। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। ही सेड शी इज एब्सेंट टुडे। अब शी कोई और पर्सन है, मैं नहीं हूं, तो ही सेड दैट शी वॉज एब्सेंट टुडे। ये शी विल रिमेन शी, ठीक है, जो से मैंने अभी एग्जांपल दिया था। अब अगर पॉजेसिव प्रोनाउंस आ रहे हैं, देन शी, shouldn't it be he said that she is absent today? नहीं। अगर सेम चीज निसर्ग, मैंने अभी क्या बोला कि देर आर सम अदर चेंजेस दैट टेक प्लेस। अभी के लिए वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन चेंजेस। अगर आप आगे जाओगे तो ये वाला छूट जाएगा, तो आगे नहीं जाना है। अभी के लिए सिर्फ प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे वो देखो, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ओके निसर्ग सर, वो फोर्थ पर्सन को बता रहा है। यस शौर्य, ओके। अब अगर पॉजेसिव प्रोनाउंस आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस में यू हैव माय, योर, हिज और हर और इट्स और आर, देयर, पोजेशन शो करने वाले वर्ड्स, अगर वो आते तो क्या करेंगे? अब बात ये रखना कि अगर सेड टू आता है तो वो टोल्ड बनता है, सिर्फ और सिर्फ अगर सेड आता है तो वो टोल्ड नहीं बनता। ये पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि अगर सेड टू समवन आएगा तो वो टोल्ड समवन आ जाएगा, ठीक है। सेड के बाद टू नहीं आया तो टोल्ड नहीं बनेगा। ओके, तो देखो, शी सेड दिस इज माई बुक। अब ये माई क्या है? माई क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो क्या हो रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ए ने, ए के पास में एक बुक थी, ए ने बी को बोला कि ये मेरी बुक है। तो बुक किसकी है? ए या बी या सी? बोलो बोलो, बुक किसकी है? ए की है, हाँ या ना? बी की तो नहीं हो जाएगी ना बोलने पर, ए की बुक है। अब बी जब सी को बताएगा तो वो क्या बोलेगा? किसकी बुक है? मेरी बुक है, तुम्हारी बुक है, ऐसा बोलेगा क्या? बुक तो अभी भी किसकी है? ए की है, हाँ। तो शी सेड दैट दैट वाज हर बुक। हर ये कौन है? दिस इज हर, हर बुक, क्योंकि एक ही बुक है अभी भी वो। आर्स, यस, आर्स इज अ पॉसेसिव प्रोनाउन, यस हर्षित। तो शी सेड दैट दैट वाज हर बुक। ओके, ही सेड दिस इज आर प्रोजेक्ट, आर प्रोजेक्ट। अब एक इसको एग्जांपल को समझते हैं। तो लुक एट द बोर्ड एवरीवन, आई मीन लुक एट द स्क्रीन। इसको रिमूव करता हूं मैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी जॉइंटली काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जॉइंटली। और ए बोल रहा है दिस इज आवर प्रोजेक्ट। अब दोनों एक साथ तो नहीं बोलेंगे, ए बोलेगा ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमारा कौन है ये सी। अब जब सी उसी बात को बोलेगा तो क्या बोलेगा? सी तो उस टीम का पार्ट नहीं है। सी क्या बोलेगा? ये उनका प्रोजेक्ट है। उनका बोलेगा या नहीं? डू यू एग्री और नॉट? क्लियर? उनका है ना, नो कर्तव्य। शी सेड दैट इट वॉज
her book is correct, sir. That is wrong. She said that. You can also use it. That is not a problem. Okay. Not a problem. You can use it as well, Aryan. चलो, तो he said that that was their project. ये R क्या बन जाएगा अब? Their project. It's a plural pronoun. Do you agree, everyone? Do we have any questions now? Do we have any questions? I will, Prakriti. Please wait for some time. सारे examples मिलेंगे आपको. Because it is clearly given वो C बोल रहा है अब उस बात को और C उसका पार्ट नहीं है. Yes, Hiya. Unmute yourself. Good evening, sir. Good evening. Sir, can you once show the first example, Yeah. the book one? Yes, sir. Sir, in this question, like the indirect speech, can we write it as she said that that book was hers? No, we can't. Because यहाँ पर आपने voice change कर लिया है. Okay. Okay, sir. अच्छा सॉरी आपने क्या बोला? She That said book was that hers. that book was hers. हाँ सी अगर आप बिना नरेशन के ये बात बोल रहे हो तो वो बात करेक्ट हो जाएगी. बट आप जब नरेशन के साथ वो चीज बोल रहे हो तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा. इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर ओनली बिकॉज माई को आपको चेंज करना पड़ेगा हर में. राइट अगर मैंने बोला होता दिस बुक इज माइन तब आप बोलते दैट बुक वाज हर्स समथिंग लाइक दैट. Okay, sir. So that will Thank be you. incorrect. Okay. Yes, Lalit. You can raise your hand, Lalit, if you have any questions. Unmute yourself, Lalit. I have allowed you to speak. Lalit, please speak. No, Navya, that is incorrect. Lalit, I have allowed you to speak. Please unmute yourself. Kartavya, you can speak now. Good evening, sir. Good evening. Sir, when we change a speech to indirect speech, can we use it instead of that the second time? Yes, we can. Yes, we can. That's not a problem. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Any other doubts, anyone? Lalit, you'll have to unmute yourself first. Sir, Yeah, I can sir, hear can you you now. hear me? Yeah. Sir, no, sir. I was also having same doubt that can we use it instead of We that? can. See, everything depends on the option that is given to you. अगर उन्होंने it लिखा है तो आप it वाला चूज करोगे. अगर उन्होंने that लिखा है तो that वाला चूज करोगे. ऐसा जनरली नहीं होगा कि दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे. Okay, sir. Daksh, you can speak now. Not able to hear you, Daksh. एक बार rejoin करके try करो दक्ष. Okay, now let's continue. Aditya, I'll explain that as well. Don't worry as of now. Now, demonstrative pronouns. What if we have demonstrative pronouns in the reported speech part? Then what do we do? अब demonstrative pronouns में क्या क्या आते हैं? So we have this, that, these and those. These four are called demonstrative pronouns. So what do we do? She said this is my car. ये this किसके लिए यूज हुआ है? इस कार के लिए. राइट तो ये दिस क्या बन जाएगा? दैट वॉज हर कार. शी सेड दैट वॉज हर कार. अब इसको आप बोल सकते हो शी सेड दैट इट वॉज हर कार बोल सकते हो बट जनरली दिस बिकम्स दैट. ओके ठीक है.
अब अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आ रहा है, रिफ्लेक्सिव मतलब जब एक्शन खुद पर आता है, फॉर एग्जांपल सेल्फ वाले वर्ड्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारे वर्ड जो सेल्फ या सेल्फ के साथ आते हैं, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. सो व्हाट डू वी डू इन दैट सिचुएशन? अब ये एक बात बताओ, अगर मैंने सेंटेंस बोला शी सेड आई डिड इट माई सेल्फ, ये आई कौन है और माई सेल्फ कौन है? यू टेल मी. शी है, हाँ या ना? है. ये आई कौन है? शी. माई सेल्फ किसके लिए यूज हो रहा है? शी के लिए. तो ये दोनों प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू शी चेंज हो जाएंगे. तो शी सेड दैट, आई बिकम्स शी, प्रोनाउन चेंज, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. तो आई बिकम्स शी हैड डन इट हर सेल्फ. हर सेल्फ क्यों? बिकॉज ये शी के लिए हुआ था. कुछ क्लियर हुआ? हाँ या ना? बाय हर सेल्फ भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Sir, what will the indirect speech? He said, that is my house. He said that was his house. Harshit. Lavanya will talk about all of those things. As of now, you don't need to worry about that. अभी हमारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन चल रहा है. अगर आप बीच में नए कॉन्सेप्ट्स डालोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार पहले होने दो, उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन जो भी आपके डाउट्स होंगे. ओके चलो अभी समझते हैं. एवरीवन एल्स पहले सारे कॉन्सेप्ट्स होने दो, फिर आपके जो डाउट्स हो रहे वो क्लियर हो जाएंगे. ऐसा होगा कि आप अभी एक रैंडम डाउट पूछोगे जो मैं 10 मिनट बाद वैसे भी बताने वाला हूं, तो वो टाइम यहां पर वेस्ट हो जाएगा, है ना? इट सेल्फ, जब आपका इट आएगा तो इट सेल्फ विल रिमेन इट सेल्फ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. यस, ऑप्शन रहेंगे आदित्य. देन टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अभी हम जो टेंस में चेंजेस कर रहे थे वो याद ये रखना है कि टेंस में चेंजेस तभी होंगे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगा. सॉरी, रिपोर्टेड वर्ब. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज रिटन इन पास्ट, देन दीज चेंजेस विल टेक प्लेस. तो क्या क्या होगा? ये आपका चेंज फ्रॉम कहां से हो रहा है? ये डायरेक्ट स्पीच से हो रहा है. ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है. तो इफ यू आर गिवन सिंपल प्रेजेंट टेंस इन केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, दैट विल बिकम सिंपल पास्ट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. एक ट्रिक यहां पर ये याद रखना है कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होकर के पास्ट का बन जाता है. पास्ट 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 पास्ट. ये ट्रिक बहुत सिंपल है. Simple present becomes simple past. Present continuous becomes past continuous. Present perfect becomes past perfect. Present perfect continuous becomes past perfect continuous. तो present के आगे बस सिर्फ और सिर्फ past ऐड कर देना है. Present का ये बहुत अच्छा ट्रिक है. क्लियर हुआ है कुछ? Karthik, that will depend if the doubts are more and we are not able to finish all the concepts, then I will be taking questions in the next session. क्या अभी कुछ क्लियर हुआ है? क्या एक बात बताओ मुझे, एक बात ऑनेस्टली बताना कि क्या मैं ही हूं जो इतना लीनियंटली लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं? बताओ जरा. क्या तुम लोग कभी कभी डांट खाते हो अपने टीचर्स से ऑनलाइन लेक्चर्स में? हाँ, तो उसका रीजन है बिकॉज तुम लोग आगे चले जाते हो बार बार. तो गाली तो मैं नहीं दूंगा पर, लेकिन सी द पॉइंट इज, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स तो होने दो. आप अगर फ्यूचर का सोचोगे, प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं है, राइट और नॉट? तो प्रेजेंट तो पहले कंप्लीट होने दो. गिव गाली इन इंग्लिश. ठीक है आर्यन, चलो आगे देखते हैं. प्रेजेंट वाला कोई भी क्या बनेगा? पास्ट टेंस. अब फोकस एवरीवन. अब देखो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में हर एक टेंस एक स्टेप आगे चला जाता है. तो सिंपल पास्ट क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा. और पास्ट कंटिन्यूस मैंने लास्ट में लिखा था, पास्ट कंटिन्यूस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। क्या समझ में आया? इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड वाला आ जाएगा ये। पास्ट परफेक्ट वही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगर आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स मेमोराइज नहीं है तो यू मे फेस सम प्रॉब्लम्स हियर। ओके, तो इनके स्ट्रक्चर्स को आपको मेमोराइज करना होगा। अब फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में आप देखोगे तो विल या शैल आता है, हाँ या ना? लेकिन नरेशन के केस में जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो विल वुड बन जाएगा। हर फ्यूचर के टेंस में विल बिकम्स वुड। सो सिंपल फ्यूचर में वुड प्लस V1 आ जाएगा, विल प्लस V1 के बदले वुड प्लस V1। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी वुड बी प्लस VING इंस्टेड ऑफ विल बी प्लस VING। फ्यूचर परफेक्ट विल बी विल हैव प्लस V3 will be transformed to would have plus V3, and future perfect continuous will be will have been plus ing to converted to would have been plus ing। मतलब इसमें क्या चेंजेस करना है? इसे फ्यूचर में will को would बना देना है। क्या कुछ क्लियर हुआ है? बट ये कब होंगे? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में लिखा हुआ है, तभी ये चेंजेस होंगे। अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तब वो टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट टेंस, ओके, ये रहा आपका पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो चेंज कौन कौन से होते हैं? सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बस उसमें परफेक्ट ऐड हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बिकम वुड बी प्लस VING। अनुभव, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं कि अब अगर आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं तब क्या करना होता है। बट भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले ये बताओ। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू गिव अ कमांड और इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट टू समवन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। या तो कमांड होगी, कमांड मतलब ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन होगा, या फिर रिक्वेस्ट होगी। इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर आप नोटिस करो तो ये इनको जनरली हम सेकंड पर्सन में लिखते हैं। दे आर रिटन इन सेकंड पर्सन, यू वाला पर्सन। लेकिन ये जो सेकंड पर्सन यू होता है ये ऑफन इंप्लाइड होता है, डायरेक्टली लिखा नहीं होता है, इंप्लाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द विंडो। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट ओपन द विंडो? आई मीन टू से दैट यू ओपन द विंडो। तो यू यहां पर क्या है? इंप्लाइड है, सेकंड पर्सन हुआ। और ओपन द विंडो इज एन इंस्ट्रक्शन। रन एज फास्ट एज यू कैन, आई मीन टू से यू रन एज फास्ट एज यू कैन। क्या है ये? कमांड है। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। व्हाट डू आई मीन? यू डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ओके, ये भी एक कमांड है। प्लीज गिव मी सम फूड, किससे बोल? यू प्लीज गिव मी सम फूड, इट्स अ रिक्वेस्ट। These statements or sentences are called imperative sentences। ठीक है, अब अगर imperative sentences आपके नरेशन में आ रहे हैं, then how do you change or transform it from direct speech to indirect speech? समझते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के केस में if the reporting verb is in the past tense, ये मैंने अभी बताया, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका past tense में होगा तब क्या क्या चेंजेस होंगे? सर बट इन सेकेंड सेंटेंस you is already present। रन एज फास्ट एज यू कैन, हाँ तो दैट वही तो मैं कह रहा हूं, कभी लिखा होगा कभी कभी नहीं लिखा होगा। ओके, तो इन दैट सिचुएशन यू चेंज द ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इन रिपोर्टेड स्पीच। कब चेंजेस होते हैं? जब पास्ट टेंस में लिखे होते हैं। ओके, अब जो कनेक्टिव वर्ड यहां पर होता है, यहां पर दैट नहीं आता है। जैसे हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और बीच में दैट डालते थे, तो इन दीज इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी डू नॉट यूज दैट। वी यूज आइदर टू in case of positive sentences or not to in case of negative sentences। ठीक है, अगर वो V1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम टू से कनेक्ट करेंगे। अगर वो do not से स्टार्ट हो रहा है, doesn't से स्टार्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, not से बेसिकली, तो हम not to स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं अभी देने वाला हूं, डोंट वरी। थर्ड पॉइंट है इन्वर्टेड कॉमर्स को हम रिमूव कर देंगे। अब यहां पर एग्जाम्पल दिया है, देखो, द टीचर सेड टू आशीष रन एज फास्ट एज यू कैन। जो मैंने वहां पर ऊपर लिखा था, रन एज फास्ट एज यू कैन, क्या है ये? दिस रिपोर्टेड स्पीच इज व्हाट? क्या बोलूंगा मैं इसे? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या? अग्री और नॉट?
Do you agree? This is imperative sentence. Instructions. Yes. तब क्या करना है? सबसे पहले तो चेक करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है. सेड कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है. ओके, मतलब चेंजेस आएंगे. तो कौन से चेंजेस आते हैं? पहला तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं. दूसरा, या तो टू आएगा या तो नॉट टू आएगा. अब पॉजिटिव है तो टू आएगा, नेगेटिव है तो नॉट टू आएगा. टेल मी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एज ऑफ नाउ. पॉजिटिव ऑब्वियसली. तो क्या आ जाएगा? द टीचर ऑर्डर्ड. अब क्यों ऑर्डर्ड? बिकॉज ये एक ऑर्डर दे रहा है. तो ये जो आपका वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता है. सेड टू क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, एडवाइज्ड, ऐसा चेंज हो जाएगा. सो द टीचर ऑर्डर्ड आशीष टू. अगर नेगेटिव होता तो नॉट टू आता. टू रन एज फास्ट एज ही, क्योंकि ये यू किसके लिए बोला गया था? आशीष के लिए. तो एज ही और ये कैन बिकम्स कुड. ये भी अभी चेंजेस आएंगे, मैं बताऊंगा. कैन इट बी टोल्ड इंस्टेड ऑफ ऑर्डर? ऑर्डर्ड नो प्रकृति. यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमको वही वर्ब यूज करना होता है जो उसमें हुआ है, जो सिचुएशन में हुआ है. ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट हुआ है तो रिक्वेस्ट बोलना पड़ेगा. अनुभव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, इन सब चीजों को इंडिकेट करते हैं. जैसे ओपन द विंडो, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. ठीक है. Take a look at this example now. Second example. He clearly said to them, "Do not wake me up." क्या मैं इसे एक वार्निंग बोलूंगा? Because प्रकृति, this is clearly written, run as fast as you can. अब आप ये समझ सकते हो, मैं अगर आपको बोल रहा run as fast as you can, that is an order. तो आपको ऑर्डर चूज करना पड़ेगा. अगर प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्ट होगा. ठीक है. तो डोंट वेक मी अप इज एन ऑर्डर और वार्निंग में भी. तो क्या करेंगे? अब सेड आया मतलब पास्ट आया तो चेंज होगा. तो ही क्लियरली वार्नड देम. सेड टू बिकम्स वार्नड. ओके. डू नॉट वेक, ये मी कौन है? ही है. ही, तो हिम अप. डू नॉट वेक, नॉट टू. क्यों नॉट टू? बिकॉज डू नॉट आया था तो नॉट टू आ जाएगा. अगर वेक मी अप होता तो टू वेक हिम अप हो जाता. Yes, we can write ordered as well. That depends on the options. आप या तो order बोल सकते हो या warning बोल सकते हो. Okay. Said to changes to told अगर imperative sentences नहीं होते हैं ललित. Because this is an imperative sentence, यहाँ पर उसके according changes होंगे. Command and ordered are same, Aryan. Same. Take a look at this example. My father says to me, focus on your goals. अब मुझे ध्यान से देख करके बताओ क्या होने वाला है. ये सेज है, मतलब टेंस में चेंजेस नहीं होंगे. दिस इज प्रेजेंट, पास नहीं आया है, तो टेंस चेंज विल नॉट टेक प्लेस. ओके. तो माय फादर क्या बोल रहा है? ये एडवाइस दे रहे हैं. माय फादर सजेस्ट कर रहे हैं मुझे कुछ, तो माय फादर सजेस्ट्स मी. ये चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में ही आएगा. तो माय फादर सजेस्ट्स मी टू फोकस ऑन माय गोल्स. ये योर किसके? माय. तो माय गोल्स. Yes, it can be ordered. Any doubts? Lalit, Kartavya, Aditya, Narang, do you have any questions? If you do not have any questions, you can lower your hands. Yes, Aditya, you can speak now. सर यहाँ पे सेज की जगह आस्क्ड आ सकता है सर? कहाँ पर? सर माय फादर आस्क्ड मी टू फोकस ऑन माय गोल्स. No, he is not asking him. वो पूछ नहीं रहे, वो बता रहे हैं. तो आस्क तो बिल्कुल नहीं आ सकता. क्वेश्चन मार्क नहीं आया. आस्क तब आता है जब क्वेश्चन मार्क होता है. Ali suggested can also be used. हाँ बोलो. ऑर्डर्ड आ सकता है सर? ऑर्डर्ड, देखो फोकस ऑन योर गोल्स, वो कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर गोल्स. दैट इज नॉट एन ऑर्डर. ऑर्डर मतलब जो स्ट्रिक्टनेस के साथ बोला गया हो, वो ऑर्डर होता है. ये तो सजेशन है. ओके. राइट. अथर्व खन्ना, you can speak now. Good evening, sir. Good evening. Sir, I wanted to know if we can use advised instead of suggested in this case. Definitely we can. No problem. All right. Thank you, sir. Okay.
देखो अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो मैं टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इतने सारे टेक्स्ट मैं रीड नहीं कर पाता हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस देखे, मैंने अनम्यूट किया है। तो डाउट सॉल्विंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अगर टेक्स्ट को इतना रीड करते करते आंसर करूंगा तो टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आस्था हैज अ क्वेश्चन। यस आस्था, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, in this question, like it's written, my father says to me, focus on your goals. So, can we leave it as Sorry? leave it as the same while changing it? Like, can नो we? नो, बिकॉज हमको इनडायरेक्ट में जो वर्ब को चेंज करना होता है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज रिटन हियर, नॉट व्हाट इज रिटन हियर। इसके बेसिस पे वर्ब चेंजेस नहीं होते, इसके बेसिस पे वर्ब चेंजेस होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। Okay, sir. ओके Thanks. फाइन। एनी अदर क्वेश्चंस? दिव्यांश, नव्या। ओके दिव्यांश, यू कैन स्पीक नाउ। Sorry, Divyansh, once again. Sir, can you please repeat rule one once only, please? कौन सा वाला? Sir, first. फर्स्ट, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, देन ओनली वी चेंज द टेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स इन द रिपोर्टेड स्पीच। जो मैंने यहाँ पर बताया है कि ये जो आपका टेंस यहाँ पर सेड टू था, तभी हम यहाँ पर चीजें चेंज करते हैं। अगर ये सेज था जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब हम चीजें चेंज नहीं करते यहाँ पर। ओके, वो पर्टिकुलरली टेंस के लिए होता है बाय द वे। ओके फाइन। अथर्व, Divyansh, Navya and Tanya, if any one of you has no doubts, please lower your hands. Tanya can speak now. Tanya, I'm not able to hear you. एक बार rejoin करके try करो तान्या। Navya, you can speak now. Sir, what if my father suggests me and my father ordered me, both are in the option? No, they will not be in the options Okay, sir. because thank you. both make sense, right? Okay. Sunil can speak now. Sir, actually, I just wanted to ask, like this topic is not given in RSM, so can you like provide us with the practice sheet? Yeah, I will be providing you the practice sheet. Don't worry about it. Okay. Okay. Thank you. चलो आगे बढ़ते हैं। Naitik, advice and suggestion both are same, so they will not be given in both of them will not be given in options. ठीक है, चलो। Rahul said to his teacher, please teach me instantly. Said to किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहाँ पर जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, सो इट्स अ रिक्वेस्ट। सो राहुल रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू क्यों यहाँ पे नॉट टू क्यों नहीं आएगा? बिकॉज डोंट नहीं आया है, तो टू टीच हिम इंस्टेंटली। हिम क्यों? बिकॉज मी बिकम्स हिम। ये हिम राहुल के लिए यूज हुआ है, मेरे लिए यूज नहीं हुआ है, राइट? तो राहुल रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू टीच हिम इंस्टेंटली। Take a look at this example now. People will say to you, work smart and hard to succeed in life. तो people आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? इट्स एन एडवाइस, सजेशन। सो पीपल विल एडवाइज यू। अब देखो ये चेंज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज विल लिखा था। तो अगर पास्ट नहीं होगा तो टेंस में चेंज नहीं होता है। पीपल विल एडवाइज यू टू क्यों? नॉट टू क्यों नहीं? बिकॉज डोंट नहीं आया। टू वर्क स्मार्ट एंड हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ। क्लियर एवरीवन? हर्षित, प्लीज आस्क द क्वेश्चन ऑन माई टेलीग्राम, आई विल आंसर यू। अगर मैं ऐसे हर एक एग्जाम्पल्स का आंसर देने लग जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन मतलब हमारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि हमको लिमिटेड लेक्चर्स में बहुत सारी चीजों को कवर करना है, राइट? जो आपके क्वेश्चंस आते हैं अनरिलेटेड टू द क्वेश्चंस दैट आई एम डिस्कसिंग, वो आप मुझे डाउट सॉल्विंग में भेजा करो, वहां पर मैं आंसर कर दूंगा।
पर अगर मैं हर किसी का क्वेश्चन ऐसे लेते जाऊं कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो फिर वैसे में तो पूरा 1 घंटा में डाउट सॉल्विंग ही करते रहूंगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट ना? फिर क्या होगा, वीक में 1 या 2 लेक्चर तो आते हैं आपके वर्बल के, क्योंकि बाकी लेक्चर चलते रहते हैं, तो फिर वर्बल कब पढ़ेंगे हम? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? चलो, अब देर आर सम अदर चेंजेस दैट ऑल्सो टेक प्लेस। वो अदर चेंजेस क्या होते हैं? वो होते हैं मॉडल्स में। जो आपके मॉडल्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में कोई मॉडल लिखा होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका पास्ट मॉडल बन जाता है। जैसे कैन बिकम्स कुड, अगर डायरेक्ट में कैन है तो वो कुड बन जाएगा। अगर डायरेक्ट में मे लिखा है तो इनडायरेक्ट में वो माइट बन जाएगा। अगर डायरेक्ट में शैल लिखा है तो वो शुड बनेगा। लेकिन कब? जब हम परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर परमिशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं शैल को तो वो वुड बनता है। ओके, अगर मैंने बोला शैल आई कम, तो ये परमिशन है या नहीं? ये परमिशन है। क्या स्पीच डायरेक्ट पेपर में आती है? ओके, नाउ आई डोंट नो व्हाट टू से। नैतिक, यस। Sir, I remember in a class you had mentioned that only experts can give advice. In this question, that's not the case. When did I say that experts can give advice only? So this is permission. जब ऐसा permission आ रहा है तो आपको इसको should बनाना पड़ेगा, otherwise ये would बन जाएगा। अब वो questions के थ्रू क्लियर होगा, डोंट वरी। और will बन जाता है would, ठीक है? तो कोई भी प्रेजेंट मॉडल पास्ट का मॉडल बन जाएगा। No, Aryan, I'm not. So if past modals are written in direct speech, then we do not change them. मतलब क्या हुआ? अगर would already direct में लिखा हुआ है तो वो would ही रहेगा, वो will नहीं बनेगा या कुछ और नहीं बनेगा, right? तो यहां पर she said I would not be the victim, ये would already direct में लिखा हुआ है तो वो direct में लिखा है इसलिए वैसा ही रहेगा। ये direct to indirect में आएगा, ठीक है? So she said that she would not be the victim, ये would remains would। क्या कुछ क्लियर हुआ है? एनी अदर डाउट्स एनीवन? नव्या, सुनील, डाउट्स? Sunil, you can unmute yourself now. Sir, actually, in the above example, in the example, people with advice, the will is not changed to would. Where? So just yeah. हाँ, तो आई टोल्ड यू ना, जो विल आना चाहिए वो यहां पर आना चाहिए। विल यहां पर नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं आना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में विल आना चाहिए, तब चेंजेस होते हैं। ओके सर। ओके, फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चेंजेस होते हैं एडवर्ब्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स में। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में हो रहे हैं, बाय द वे, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में नाउ लिखा हुआ है तो वो देन बन जाएगा या फिर एट दैट मोमेंट बन जाएगा। दोनों यूज कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस शौर्य। समर्थ, I cannot extend the session beyond 10:15. What I will try here is मैं उसके पहले ही एक डाउट सेशन रख दूंगा 5 मिनट का। ओके, सो नाउ बिकम्स देन और एट दैट मोमेंट। टुडे जो है वो दैट डे बन जाता है। टुमारो विल बिकम द नेक्स्ट डे। यस्टरडे विल बिकम द डे बिफोर। कम विल बिकम गो। ब्रिंग विल बिकम टेक एंड दिस विल बिकम दैट। ये चेंजेस आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये सब आप नोट्स जब डाउनलोड करोगे आप उनको रिवाइज कर सकते हो, अभी के लिए टेंशन नहीं लेना है। अब अगर आप रिपोर्टिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तब क्या करना है? देखो, एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, बाय द वे, क्वेश्चन स्टेटमेंट। एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैंने आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें यू कैन आंसर विद आइदर यस और नो, उसके अलावा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। तो इफ देयर इज अ यस नो क्वेश्चन in the direct speech, then the reported speech will start with either whether or if, दोनों में से कोई एक आएगा, and the reported clause form will be subject plus verb। क्योंकि questions, जब आप question पूछते हो तो क्या करते हो? Are you
सॉरी, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो क्या बोलते हो? आर यू क्राइंग? मुझे एक बात बताओ, इसमें वी हैव फॉलोड सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब प्लस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब प्लस सब्जेक्ट. टेल मी. आर इज योर वर्ब, यू इज योर सब्जेक्ट. तो क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तब क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है. ठीक है, इसको समझते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आता भी है. पीटर सेड, आर यू फ्रॉम इंडिया? नाउ यू कैन टेल मी वेदर यू विल बी आंसरिंग विद यस और नो. बताओ क्या इसका आंसर यस या नो होगा? ओके. सेकेंड थिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यस और नो. क्वेश्चन मार्क है, यस. तो क्या देख चेक करना है? बिकॉज इट इज क्वेश्चन मार्क, तो ये सेड क्या बन जाएगा? आस्क्ड. क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन है तो आस्क हो जाएगा. सेकंड, यस या नो आंसर आएगा, यस या नो. तो जब भी यस या नो आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर आ जाता है इफ या फिर वेदर, इन इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद. तो पीटर आस्क्ड इफ. ये यू कौन है? ये क्या था? वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा. तो वेदर आई, ये आई मुझसे पूछा गया ना, तो मुझसे पूछ रहा है, तो आई वॉज फ्रॉम इंडिया. आर बिकम्स वॉज, ये तो बताया था मैंने. प्रेजेंट बिकम्स पास्ट. सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया. ओके अनुभव. सिंपल लैंग्वेज में इफ देर इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विद आइदर अ यस और अ नो, then you have to follow two things. First one, you will have to add या तो whether या फिर if. Second thing, verb plus subject का जो ऑर्डर था उसको रिवर्स करके subject plus verb कर देना है. बस दो ही चीजें. ये verb plus subject था, R is the verb, U is the subject. इसको रिवर्स कर दिया मैंने. अब U यहां पे कौन था? मैं था ना, मुझसे पूछा गया था वो, तो I हो जाएगा. U becomes I, ये subject है, और R becomes was because past में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट से. अभी क्लियर हुआ अनुभव एंड एवरीवन एल्स? बोलिए भाई. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते. टॉम आस्क्ड, डू यू वांट टू सिट हियर? अच्छा, इसका आंसर कैसे दोगे आप? अथर्व, यू कैन स्पीक नाउ. Sir, Yes. I wanted to ask you how did we change bring to take? जो ब्रिंग होता है वो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में ब्रिंग लिखा गया है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होकर के टेक बन जाता है. अब वो अगर एग्जांपल आएगा तो मैं उस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. Alright, sir. ठीक है, ओके. And सॉरी, हाँ कुछ बोल रहे थे अथर्व तुम? sir, I remember you mentioned that when we say advice, it is usually given by some expert. Otherwise, we use suggested. Okay. So, sir, in the So above there is no example, distinction between advice and suggestion in case of narration. Okay, all right, sir. fine. Anyone else who has a question? No. Okay. So here, okay, here. Sir, sir, when we use if and whether, so like, is there some rule where we should use if or where we should use whether, or No, we there can is use no any rule. one You of? can use either one of them. Okay, sir. Okay. So look at the second example. Tom asked, "Do you want to sit here?" So I will answer this question by either yes or no. बन गया yes or no question. तो क्या करना पड़ेगा? पहला तो ये क्वेश्चन है तो ये आस्क का आस्क ही रहेगा क्योंकि आस्क बोला था उसने. दूसरा या तो वेदर डाल दो या इफ डाल दो, तो मैंने यहां पर वेदर डाल दिया, पिछले वाले में इफ डाल दिया था, नो प्रॉब्लम. फिर ये डू इज योर वर्ब, यू इज योर सब्जेक्ट, इसको चेंज करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाना पड़ेगा. यू कौन है? मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, तो दैट मीन्स यू विल बिकम आई सब्जेक्ट, एंड ये वांटेड बन जाएगा पास्ट, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. क्या चीजें क्लियर हुई है? बोलो भाई.
क्लियर है? चलो अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं. 1 second. Now, do you see the questions here? I will launch the poll, don't worry. ठीक है. Try the first question. अगर statement direct speech में है तो you'll have to convert it into indirect speech. If this is written in indirect speech, then you'll have to transform it into direct speech. Vice versa करना है. First question try करो जरा. The poll has been launched, by the way. Come on, come on, come on. %84% of you have given option C as the correct answer. Now let's apply the conceptual knowledge that we have obtained as of now. I said to him, will you go to Delhi? Question mark. Question mark मतलब क्या हो जाएगा? Said to will become asked. हाँ या ना? Said to will become asked. Second thing, will क्या बन जाता है? Would बन जाता है. ये तो बताया था मैंने. और ये you किसके लिए पूछा गया है? मैंने उससे बोला है. हाँ या ना? ठीक है, तो ये मेरे लिए थर्ड पर्सन बनेगा. ओके, देखते. और ये येस और नो क्वेश्चन है क्या? आइदर यू विल गो टू दिल्ली और यू विल नॉट गो टू दिल्ली. तो येस और नो क्वेश्चन भी है. येस और नो. तो क्या करेंगे? या तो वेदर या तो इफ डाल देंगे. वेदर और इफ चेक करते. आई आस्क्ड हिम विल ही गो टू दिल्ली. अब प्रॉब्लम क्या थी? एक और सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए था. ये क्या आ गया? विल इज वर्ब सब्जेक्ट, और विल को विल सेम रहने दिया. तो इनकरेक्ट. दिस इज वर्ब प्लस सब्जेक्ट. I said to him, would he go to Delhi? Said to कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है. आस्क्ड आना चाहिए था. तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गया. दूसरा, would he verb plus subject, incorrect. सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए था. I asked him, asked आया है, करेक्ट है. If आ गया है, if he is your subject, would is your verb, subject plus verb, लास्ट में फुल स्टॉप आया है, करेक्ट है. क्या हुआ? हाँ, I said to him, would you go to Delhi? I said to him, said to आस्क्ड होना चाहिए था. एक प्रॉब्लम ये हो गया. दूसरा, वुड यू वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए था ना. So do you have any questions now? Anyone? Raise your hands if you have questions. Yes, Anurag, you can speak now. Anurag CT. You have raised your hand, Anurag. Okay, no doubt. Fine. चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो जरा. 2. I'll launch the poll now. यूज स्पेस कलर पेंसिल प्लीज. ये स्पेस कलर पेंसिल क्या होता है आर्यन? I have no idea. Harsh. Done everyone? Purple and stars.
Kaushiki, that is the second time someone has said the same thing to me. चलो देखते हैं. So second question now. Everyone focus. 82% of you have given option B as the correct answer. He said, I have read this novel. पहली बात तो ये question नहीं है. Okay. Said to होता तो told बन जाता, वो भी नहीं है. अब देख चेक करते हैं. He said I have. क्या ये present perfect tense है? Is it present perfect tense? Yes. Present perfect becomes past perfect according to the rule. It becomes past perfect tense. Okay. तो देखते हैं. He said that. That add हो जाता है. तो he said that. He has तो present perfect ही रहा भाई साहब. Incorrect. He said that he had read that novel. He said that he had. That आ गया. Had read is past perfect. तो ये correct है. और this becomes that. ये भी important point था. This becomes that. तो यहाँ पे this भी था by the way. This ये भी incorrect था. तो this makes sense. By the way इसका आंसर क्या था? C था first का. He said that he read. अब इन्होंने क्या किया? Present perfect को simple past बना दिया. This is simple past. Incorrect. Present perfect का क्या होता है? Past perfect. तो ये incorrect हो जाएगा. He said that he had read this. अभी बताया था this becomes that. ये that होना चाहिए था. तो ये भी incorrect है. तो answer has to be option B only. Any doubts? पेंसिल का कलर बोल रहा है. अरे यार वैसे ही ध्यान दे दो यार तुम लोग. कहाँ कलर वलर चेंज करवा रहे हो? उम्र हो गई है मेरी अब इतनी. कहाँ टेक्नोलॉजी समझती है मुझे. चलो 2-4 साल में जाने वाला हूं मैं यार. टेंशन मत लो तुम. थर्ड क्वेश्चन नाउ. एवरीवन ट्राई. ट्राई थर्ड क्वेश्चन एवरीवन. ठीक है अनुभव, देखते हैं. थर्ड इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन बाय द वे. बहुत ध्यान से देखो. क्या भास्कर? कोई बात नहीं जानवी, मेहनत करो, आ जाओगे. ठीक है अनुराग. What can I say, Atar? Aryan, these two spellings are correct. One is British, another one is American. No problem. Here the weightage could be around 1 to 2 questions. Chalo, let's see. 79% of you have given option C as the correct answer. किस पोल पर अनुभव? याद नहीं यार, मुझे बहुत सारे काम करते रहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ. Anyways, Tanya said to her friend, can you lend me an umbrella? तुम्हें ऐसा नहीं लगता she's requesting her to give her an umbrella? यार मुझे umbrella दे दो ना please something like this करके, right? तो ये request है actually. She is not asking a question, she is requesting her umbrella दो दीदी. हाँ, तो please give me an umbrella. Tanya requested her friend. ये कैसे बनेगा भाई? प्लीज कहां से आ जाएगा? प्लीज तो है ही नहीं, तो प्लीज हम डाल नहीं सकते. इट बिकम्स इनकरेक्ट. विल यू लेंड मी एन अम्ब्रेला? तानिया आस्क्ड हर फ्रेंड. विल यू लेंड, भाई कैन को आपने विल कैसे कर दिया? इनकरेक्ट ना. और ये तो क्या है? तानिया आस्क्ड हर फ्रेंड. दैट तो आया ही नहीं, टू तो आया ही नहीं, तो इनकरेक्ट हुआ ना. इन्वर्टेड कॉमा वाला ही पॉइंट है ये तो. तानिया रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू ये इंपेरेटिव सेंटेंस था, तो टू या नॉट टू आता है, रिमेंबर. तो और ये रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा. तानिया रिक्वेस्टेड अ फ्रेंड टू लेंड हर. ये हर कौन है? तानिया है. लेंड हर एन अम्ब्रेला. ये फुल स्टॉप है बाय द वे. क्या क्लियर हुआ? बोलो भाई.
येस और नो क्वेश्चन नहीं है मनन, दिस इज अ रिक्वेस्ट. मुझे अम्ब्रेला चाहिए, प्लीज गिव मी एन अम्ब्रेला, टेल कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला. ये येस और नो क्वेश्चन नहीं है. क्या मैं इतना बोल के चुप हो जाऊंगा कि तुम मुझे अम्ब्रेला दोगे या नहीं? यस या नो बोलो बस. ऐसा तो नहीं ना, मुझे अम्ब्रेला चाहिए. Sir, in option B, she asked her umbrella, but in question, she said an umbrella. An umbrella लिखा है ना? An umbrella. Your umbrella will be incorrect. An umbrella will be correct, na? This is correct. C is the answer. Tanya asked her friend to give her an umbrella. Tanya asked तो नहीं, ये request हो रही है, ये request होना चाहिए था. So this is incorrect. Tanya requested her friend to give her an umbrella. और lend her an umbrella, क्योंकि lend यूज हुआ था यहाँ. क्या कुछ क्लियर हुआ है? चलो फोर्थ ट्राई करो. और डू यू वांट सम टाइम फॉर डाउट सॉल्विंग नाउ? ओके चलो क्वेश्चन करते फिर. फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 एवरीवन. बताया था मैंने इसका रूल क्या होता है. गुड आर्यन. Yes, Prakriti, you may expect 1 to 2 questions. Mocks are conducted already, I think, last year. आपके मॉक स्टार्ट हो गए, आई थिंक. चेक करो एक बार. %95 of you have given option D as the correct answer. क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने तो आज मेरा. Yes, Janvi will check the leaderboard as well. तो सीता said I may go there. ये I कौन है? सीता है. May becomes might बताया था मैंने. ओके तो सीता says. भाई said को आपने says कैसे बना दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता. और may का may नहीं होता, may का might बन जाता है. सीता says same point, says नहीं हो सकता. That she is going, ये तो present continuous tense हो गया. Incorrect. सीता said that she will कैसे हो सकता है? may को will नहीं बना सकते. सीता said that she क्यों? बिकॉज I किसको रिप्रेजेंट करता है? सीता को. और may becomes might बताया था. go there, तो ये तो करेक्ट है. ओके तो आंसर इज ऑप्शन. सौम्या ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू योर आईपी मैट इंदौर. थोड़ा सा 10-19-20 का फर्क हो सकता है. ठीक है. लीडर बोर्ड में क्या चल रहा है भाई? अथर्व इज एट द फर्स्ट पोजीशन. गुड अथर्व. अनन्या सेकंड पोजीशन. प्रकृति थर्ड पोजीशन. शहनाज फोर्थ पोजीशन. हर्षित फिफ्थ पोजीशन. अद्वैत सिक्स्थ. आरची सेवेंथ. डॉली एट्थ. जानवी नाइन्थ. and Krishnam is at the 10th position. Congratulations top 10 guys. Do well in your lives. These top 10 rankings matter in life. Shaurya, you'll have to be very, very active. That's great, Kartavya. Third question again. Okay, Ananya, this is the third question. Disney, I will attach the answer key, don't worry. मैं जो नोट्स मैंने अभी डिस्कस किए एंड दिस क्वेश्चन शीट दोनों अटैच कर दूंगा. उसी में आंसर्स भी है. सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड अगर आपको डाउट्स होते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी लेटर. क्लियर एवरीवन? कैन यू गिव एन एग्जांपल? ब्रिंग. ओके चलो देख लेते हैं. ही सेड Ram brought क्या लिखेंगे इसमें यार? एग्जाम्पल्स ऐसे सोचने पड़ते हैं इसलिए तो टाइम लग जाता है. He said that he said that I want to bring you home. He said that I want to bring you home.
So he said I want to bring you home. तो क्या बन जाएगा ये? He said that he wanted to take me home. अभी कुछ समझ में आया? Can you bring my pen? It's urgent. What do you mean by that? Bring my pen? अच्छा ओके, अच्छा तुम एग्जाम्पल दे रहे थे. गुड हर्ष. Nisarg, do you guys want one more class for question solving here, everyone? Or can you try on your own and ask the doubts later? Okay. Some people are saying that they want one more class. Some are saying that we don't need one more class. So I'll see what I can do. Anyways, so thank you everyone for joining in this session. I hope you had a great time, and take care. Good night. Have fun. I will be uploading these 2 files by tomorrow. Bye bye. Good night. Answers will be there, Harsh, don't worry. Bye bye, good night. Lasya on the website. Chalo, bye, good night.